چین کے شمال مغربی شہر گانسو میں 6.2 شدت کا زلزلہ۔ چین شہر میں زلزلہ آیا، شہری ہلاک اور متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر، مرکز صوبے لانزوا کے دارالحکومت سے 102 کلومیٹر دور جنوب مغرب تھا۔ چین زلزلے سے متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے، متعدد لوگ زخمی ہو چکے۔ شمال مغربی شہر گانسو میں 6.2 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، 100 سے زائد شہری ہلاک جبکہ متعدد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ زلزلے کی گہرائی 35 کلومیٹر، مرکز صوبہ لانزوا کے دارالحکومت سے 102 کلومیٹر دور جنوب مغرب تھا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاکستان امریکہ کا غیر نیٹو اتحادی اور شراکت دار ہے، یہ کہنا ہے ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا۔ پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کے عسکری اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان سے دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان امریکہ کا غیر نیٹو اتحادی اور شراکت دار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف نے امریکہ کے عسکری اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات بھی کی ہے۔ پاکستان سے دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ کیا وجہ ہے اب تک کراچی میں ترقی نہ ہوئی۔ کراچی میں امن نواز شریف قائم کرے اور کراچی والے ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں۔ کراچی والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کوئلے سے بجلی نواز شریف بنائے اور ووٹ کسی اور کو دے آتے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھئی کراچی میں کیا امر مانے ہے کہ کراچی کے اندر یہ ترقی کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ ایک پینے کا پانی کا منصوبہ بھی جو ہے نا وہ بھی مکمل نہیں ہوا وہاں پہ۔ ہم نے جو گرین لائن لگائی ہے وہ گرین لائن سب کچھ تیار ہو گیا، لیکن جو بسیں تھی وہ نہیں آئیں۔ کس نے کراچی میں امن قائم کیا؟ دہشت گردی کو ختم کیا۔ سندھ کے اندر کوئلہ ہے، پچھلے 50 سال سے سن کے کان پک گئے تھے، لیکن سب کہتے ہی تھے، لگاتا کوئی نہیں تھا کوئی پروجیکٹ وہاں پہ۔ ہم نے اس کوئلے کی کان کو جا کے کوئلہ وہاں سے نکالا، ایک وہ پروجیکٹ، اس کوئلے کو پھر ہم بجلی میں ڈھالا اور آج وہاں بجلی بن رہی ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا 2200 میگا واٹ، تو کس نے یہ سارے کام کیے ہیں؟ اور ہمیں کہہ دیتے ہیں نواز شریف نے امن قائم کیا، نواز شریف نے امن قائم کیا، جب ووٹ کی باری آتی ہے تو ووٹ کسی اور کو چلا جاتا ہے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو امن کراچی میں قائم ہم کریں اور ووٹ جائے کسی اور کو، یار یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے۔ کراچی والوں ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے دیکھو تو صحیح ذرا تھوڑا سا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے پورا خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم نے کام کیا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہر آمریت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نواز شریف کا دور بھی پیپلز پارٹی کے لیے آمریت سے کم نہ تھا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں پارٹی کی خاتون ورکر زبیدہ شاہین کی رہائش گاہ بغوان پورہ آمد۔ کارکنوں نے بلاول بھٹو زرداری کو امام ضامن مانا۔ بلاول بھٹو نے شہید بھٹو، شہید بے نظیر کی جدوجہد کی ساتھی زبیدہ شاہین کی عیادت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ لاہور پہنچ کر بہت اچھا لگا۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری نے عوام کو مشکل میں ڈال رکھا ہے، لاہور کے شہریوں کے مسائل حل کریں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، سیاسی جماعتوں کے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ سب کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں اکثریت حاصل ہوئی تو سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں ہی رکھا گیا اور انشاءاللہ تعالی ہمارا محنت ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی زور و شور کے ساتھ ہم اسی لاہور شہر میں اس کے لیے محنت کریں گے۔ سیاسی جماعتیں کے دروازے ہر کسی کے لیے سیاسی ڈائیلاگ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتے ہیں۔ اگر ہمارا حکومت بنتا ہے تو میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں گا۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीत से कम नहीं था। ये वो जमात है जिनके कारकुन हमारे साथ खड़े रहे जिया की आमरीत में, मुशर्रफ की आमरीत में, और मियाँ साहब का जो पहले दौरे हुकूमत था, दूसरे दौरे हुकूमत था, वो आमरीत से कम नहीं था। उस दौर में भी वो हमारे साथ खड़े रहे, तो हम इन पे फख्र करते हैं। दौरा लाहौर के दौरान बिलावल भुट्टो आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरती मुलाकातें करेंगे और आइन की गोल्डन जुबली तकरीब से भी खिताब करेंगे। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा, पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलूचिस्तान की ज़मीन ऐसी है, अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं, भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलूचिस्तान को दूंगा। बलूचिस्तान की सरजमीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों के हकूक देना मेरा जुर्म है, अगर तो 24 साल मजीद जेल काटूंगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटों की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 85 लाख से बढ़ गई। 5 करोड़ 93 लाख से ज़ायद ख़वातीन भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखी। मुल्क भर में 12 करोड़ 85 लाख 85,760 वोटर्स, 53% मर्द, 46% खवातीन शामिल। पंजाब में 3 सूबों से भी ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स। इलेक्शन कमीशन ने तफसील जारी कर दी। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में कुल वोटर्स 7 करोड़ 32 लाख 7,896 हैं। इनमें 3 करोड़ 91 लाख 22,082 मर्द और 3 करोड़ 40 लाख 85,814 खवातीन हैं। सिंध में 2 करोड़ 69 लाख 94,769 में से 1 करोड़ 40 लाख 12,655 मर्द, जबकि 1 करोड़ 23 लाख 82,114 खवातीन वोटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 19 लाख 28,119 है। इनमें 1 करोड़ 19 लाख 44,397 मर्द और 99 लाख 83,722 खवातीन शामिल हैं। बलूचिस्तान में 53 लाख 71,947 रजिस्टर्ड वोटर्स में खवातीन वोटर्स की तादाद 23 लाख 55,783, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 30 लाख 16,164 है। आदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में 10 लाख 83,029 वोटर्स हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा की 2 सूबाई हल्का बंदियां बदलने के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। अदालत का कहना था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन तवील हो। इंतखाबात को होने दें। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आम इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। शेड्यूल के बाद सब कुछ रुक जाता है। इंतखाबात होने दें, सुप्रीम कोर्ट। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकती है। फैसला दिया तो दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शिफाफ हों। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मुअस्सर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करनी है। इलेक्शन कमीशन ने शिरानी और योब के सूबाई हल्का बंदियां बदलने के बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर अली जफर ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करने और दरख्वास्त गुजारों के वकला ने इंतखाबात कलअदम करार देते हुए दरबार इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब हम मुतमिन होंगे तब भी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत मुकम्मल। दरख्वास्त गुजारों के वकला की इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान वकला के हमरा पेश हुए। अकबर असबाबर समेत दीगर दरख्वास्त गुजार भी पहुँचे। पीटीआई के वकील अली जफर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पढ़ते हुए कहा कि जो पार्टी का मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकता। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान के लिए शराइत है।
जो हमने पूरी कर दी, जिस पर मेंबर कमीशन ने कहा कि जब हम मुतमईन होंगे तब भी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। वकील ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए खत भी लिखा। इलेक्टोरेट बॉडी में से किसी ने भी इलेक्शन से मुतालिक शिकायत नहीं की। हम वाहिद पार्टी है जिनका सब कुछ इंटरनेट पर मौजूद है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब तो जलसे भी इंटरनेट पर हो रहे हैं। वकील ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा भी की। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकीलान ने जवाब में इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवाने की इस्तदा भी की। मैं इन वकीलों के खिलाफ जो खुलेआम झूठ बोलते हैं, ये वो वकील हैं जो सियासी जमात के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इस पर मैं अभी बात करता हूँ। ये खुला झूठ बोलते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले पर अलग से शो काज नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न के बाद सुई सदर्न की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर भी समाअत मुकम्मल कर ली गई। कंपनी ने मौक़िफ़ अपनाया कि शदीद रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। रवां साल के खर्चे कीमतों में इजाफे से ही पूरे होंगे। तफसीलात देखिए। सिंध और बलूचिस्तान के सारिफिन के लिए गैस महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने सुई सदरन की गैस महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। SSGC ने गैस की कीमत में 226 रुपए 18 पैसे फी MMBTU मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदरन की गैस की मौजूदा औसत कीमत 1470 रुपए 21 पैसे है। कंपनी ने नई औसत गैस कीमत 1696 रुपए 39 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में बताया गया है कि सुई सदरन का रवां माली साल में रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना 47 अरब 77 करोड़ रुपए है। दौरान समाअत सुई सदरन हुक्काम ने बताया कि डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से गैस हर 6 माह में महंगी हो जाती है। हालिया इजाफे से सिर्फ रवा साल का रेवेन्यू पूरा होगा। दौरान समाअत ताजिर बरादरी ने मजीद इजाफे को कारोबार बंद करने के मुतरादिफ करार दिया। कहा कि पहले ही गैस की कीमतें दुगना हो चुकी है, मजीद इजाफा न किया जाए। हुक्काम सुई सदरन ने कहा कि बलूचिस्तान में 72% गैस मीटर टेम्पर्ड है। RLNG घरेलू सारिफिन को देने से टैरिफ बढ़ रहा है। टैरिफ न बढ़ाया गया तो कंपनी का ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के सामने रखूंगा। टैरिफ न बढ़ाया गया तो गैस की तलाश की सरगर्मियां रुक जाएगी।